Hello, what is your name? Myself, Vishesh. Okay. If I'm talking, what is your name? Then you said my name is विशेष. Okay, sir. क्योंकि अगर आप माई सेल्फ बोल रहे हो तो खुद में मैं विशेष हूँ, तो वो चीज़ नहीं है. ठीक है. माई सेल्फ क्या होता है? खुद में, खुद से. ठीक है. खुद से मैं विशेष हूँ. ठीक है. ये अक्सर लोग बोलते हैं ना माई सेल्फ करके, तो वो चीज़ें नहीं है, वो सब सही नहीं है. वो इनफॉर्मल में भी आता है वो. What is your name? My name is Vishesh. How old are you? I'm 13 of my age. Can you speak English? Yes, I can speak English. What do you wanna be? I wanna be a judge. And how many hours do you study at your home? I study around 1.5 hour. Do you think 1.5 hour is sufficient for being a judge? No, it's not sufficient, but I will try to increase my study time. Okay, so where are you studying? I'm studying in Soni Pari Inter College. Okay. Did you used to speak English before joining England Institute? I didn't used to speak English before joining England Institute. So, how did you start speaking English? Uh, I have started speaking English after joining England Institute, and I always do practice at my home, and I always try to increase my English communication skills. Okay. Who do you speak English with? I speak English with my brother, but now he is in Delhi. Okay. What is he doing in Delhi? He is looking for a job. Okay. Has he found a job? He has not found any job. Okay. What about his qualification? What has he completed? He has completed Polytechnic from Civil Trade, Okay. and now he is doing BSc from AG. Okay. What about your father? What is he doing? He is a lawyer. Okay. So, where is he working? Where is he doing the practice? Where is he doing his practice? He is doing his practice in a railway court Farkabad, and also district court Farkabad. Okay. How many siblings do you have? I have two siblings. Okay. Why do you wanna be a judge? Because it's my father's dream, that's why I wanna be a judge. Can you operate laptop? No, I cannot, but little bit I can. Do you have a laptop? Yes, I have a laptop. And what time do you get up early in the morning? I get up early in the morning at 5:30 a.m. Okay. What is your favorite sport? My favorite sport is cricket. Who is your favorite cricketer? My favorite cricketer is Virat Kohli. Why Virat Kohli? There are many cricketers like MS Dhoni. Don't you like MS Dhoni? Why you like Virat Kohli only? Because he is very good player, and he is a classical player. That's why I like him. Okay. That's why you like Virat Kohli. Yes, sir. What is your weak subject? My weak subject is Hindi. What is your strong subject? My strong subject is GK. GK, general knowledge. Yes, sir. Do you know who is the president of India? The president of India is Mr. Ramnath Kovind. Who is the first prime minister of India? Mr. Jawaharlal Nehru. And who is the first president of India? I think Dr. Rajendra Prasad. Okay, who is the first person of any country? First person means Who is the first person? मतलब कोई भी पहला इंसान कौन सा होता है मतलब president. president. President is the first person. Okay. So you read your choice is general knowledge. Yes, sir. Do you have a general knowledge book? Yes, I have. What book do you have? I have a general knowledge book of it's from I think Manoj Prakasam. ओके. सो बच्चों ये कहीं और विदेश से नहीं आया है, आप लोगों से ही निकला है, मतलब आप लोगों के बैच से ही निकला है, मतलब ऐसे ही पढ़ के निकला है. ठीक है. बस क्या है, सीखता था, जो मैं सिखाता था घर में प्रैक्टिस करता था. ठीक है. और इनकी वजह से आधा नकला नैना आ चुका है, इनके स्कूल से कई बच्चे आ चुके हैं. ठीक है. लेकिन इनका जैसा बनने की कोशिश कोई नहीं करना चाहता. ठीक है. तो ये मेरे पास आए थे तब ये बहुत छोटे थे, 1 साल पहले, 1 साल में इनकी हाइट भी इतनी हो गई. जब मेरे पास आए थे तो ये बहुत छोटे से लगते थे, पुराने फ़ोटोज़ में दिखाएंगे आपको. लेकिन आज ये काफ़ी काबिल हो गए हैं और ये थ्रू आउट इंग्लिश बोल सकते हैं. ठीक है. इनको हिंदी की बोलने की ज़रूरत नहीं है, थ्रू आउट इंग्लिश. ठीक है. और सोनी पारिया से पढ़ाई करते हैं ये. सोनी पारिया में तो पूरा जहान पड़ता है. ठीक है. सो what about your mother? What is she doing? She is a homemaker. Okay. Does she uh, does she give you delicious food?
Yes, she gives me delicious food. Does she scold you? She scolds me When does she scold you? whenever I do something wrong. Okay. Do you fight with your brother? Sometimes I fight with my Do you brother. operate mobile? I operate mobile. Do you have Instagram account? I don't have Instagram account. What do you use in your mobile? I use YouTube and sometimes I play games. Okay. So do you know how to dance? I know a little bit. Can you dance? Now I can dance. But what is your favorite song? Uh, it's Chatak very Matak. it's very complicated question. ओके. जब भी आपको कोई आंसर देने का मन ना हो तो बोल दो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फॉर मी. कॉम्प्लिकेटेड माने मतलब बहुत विषम क्वेश्चन है. जैसे कोई आपसे पूछे कि टू whom यू लाइक मोस्ट, लाइक योर मदर एंड सिस्टर या मदर और फादर, तो अगर आप बोलोगे आई लाइक मोस्ट माई फादर, तो मम्मी क्या मतलब इतना मतलब खाना ना बनाती, कपड़ा ध्यान रखती, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी. तो आप बोलोगे इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फॉर मी, आई कैन नॉट गिव द रिप्लाई. ठीक है, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ. ठीक है, समवेयर we cannot choose the person. Like my mother, she is also very nice, and my father, he is also supporting me. So I cannot say that my mother is well and my father is not well. ठीक है, so I cannot give the favor to one person. So it's a complicated question for me. Okay, so when did you join England Institute? I joined here in December 2020. 20. Now you have completed 1 year in this academy. Yes, sir. So how do you feel proud to be a part of England Institute? Yes, sir. I feel proud to be a part of England Institute Why? because I have learnt English in this academy, so that's why. Very good. So please express your views on the very first day when you came here. How did you just feel when you came here first day? I want to say that first day I came here and I don't know about anything about English. I And didn't know. sorry, I didn't know about anything about English, and I thought that I can't speak English. But after Ravi sir taught me, I started to speak English, and now I'm very fluent speaker because of Ravi sir. And Okay, thank you. I did practice at my home, so this is only the reason behind my English. Please introduce yourself. So hello guys, my name is Vishesh, and before introducing myself, I would like to give thanks to Mr. Ravi Shake sir. your hands also. I would like to give thanks to Mr. Ravi sir because he is the only man behind my English. So thank you so much, sir. And my name is Vishesh. I'm 13 years of my age. I'm studying in class 7 from Soni Pari Inter College. And let me tell you something about my family. There are 7 members in my family, including me. I have my parents, grandparents, and 2 siblings. Both siblings are elder to me. They are my brothers. And my father name is Mr. Gautam Singh Verma. He is an advocate, and my mother name is Mrs. Rajni Verma. She is a good homemaker. Now let me tell you something about my hobbies. My hobbies are playing cricket and watching horror stories. And now let me tell you something about my weaknesses and strengths. As we all know that nobody is perfect in this world, so I have also some weaknesses. My weaknesses are I can't say no when someone asks me for help, and I trust on people very quickly. Now I want to share my strengths. My strengths are I'm punctual and I'm good team player. So now I want to say something about my life goals. I want to share my goals in short and long term goal. My short term goal is to complete my graduation, and my long term goal is to become a judge. So it is all about myself. Thank you for listening me carefully. Okay, guys. देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि अगर एक इंसान ने कर दिया है तो दूसरा भी कर सकता है. ठीक है, मैं इसी रूल पे चलता हूँ और इसी रूल से मैं आगे तक यहाँ तक बढ़ा हूँ अपनी लाइफ में. ठीक है, मतलब जैसे कि एक जॉब होती है एनालिस्ट की. ठीक है, डेटा एनालिस्ट की जॉब होती है, जो डेटा पूरा हैंडल करता है. कंपनी का डेटा उसके हाथ में होता है सारा का सारा. वो चाहे कंपनी को उड़ा दे, मतलब आगे बढ़ा दे, कंपनी घाटे में कर दे, मतलब XYZ उसके पास सारी चीज़ें होती हैं.
और उसकी वैल्यू इतनी होती है कंपनी के मालिक के बाद उसकी नंबर होता है, ठीक है। तो जब मैं किसी कंपनी में काम करता था तो मैं देखता इस बंदे के पास सबको आगे पीछे घूमता है, मतलब वो बंदा बैठ के काम कर रहा है, सारे सीनियर सब खड़े हुए हैं उसके आसपास, मतलब वो बैठ के काम कर रहा है। मैंने कहा ये कौन सी पोजीशन होती है? बोले ये एनालिस्ट की पोजीशन होती है, मतलब साइंटिस्ट वाली पोजीशन होती है। मैंने कहा यही मुझे करना है। बोला इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए और इसके लिए मतलब एटलीस्ट IITian चाहिए, मतलब बंदा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए उसका और IITian होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है तो हो सकता है क्या? कि हो तो सकता है लेकिन मेहनत चाहिए उसके लिए। तो मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ चलती थी, अगर एक इंसान कर सकता है तो वही इंसान, मतलब भले ही IIT हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बच्चों मतलब आप आज की डेट में इतने भाग्यशाली हो, यू आर वेरी फॉर्चुनेट पर्सन दैट यू आर हैविंग इंटरनेट। ओके, when we were studying it was very tough to get internet facilities, बहुत एक्सपेंसिव भी थी, एटलीस्ट वी हैड टू पे 20 रुपीज़ फॉर 1 hour, बट नाउ इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन से एवरी डे यू आर गेटिंग 1.5 GB data, so you can utilize this data to enhance your skills. So I started learning by the help of YouTube. So I got a job as a data analyst. I work in Food Panda, I work at Cars24, I work at Ola Cab. So because of this YouTube, because of self learning, because of dedication, that if a person can do, then I can also. So अगर आप एक पर्सन कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लैंग्वेजेस पे वर्क करना स्टार्ट किया, गूगल स्क्रिप्टिंग, ये सब चीज़ें सीखी मैंने उन सब चीज़ों को, और IIT के साथ में बैठ के काम किया। मतलब मेरा भी सपना था कि हम IIT करें, मतलब लेकिन कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने अपने आप को IIT करे भी नहीं, IIT के बराबर बैठ के काम किया IIT के साथ में। और उनसे मतलब एक बार, मतलब पहले जब पढ़ते थे तो बड़ा शौक होता था कि मतलब आपका IITian दिखते कैसे हैं। तो IIT कानपुर में, कल्याणपुर में है, तो वहाँ पे जाके दरवाजे से झांकते थे, कोई दिख जाए IITian दिख जाए, कैसा होता है दिखने में, कैसा होता है, कपड़े कैसे पहनता है, कैसे साइकिल चलाता है। तो IITian देखने के लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन IIT तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ IITian के साथ टेबल टू टेबल खाना खाया और प्लस टेबल टू टेबल बैठ के मतलब पढ़ाई किया, मतलब काम किया, और उनके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, मतलब वो सब चीज़ें हो पाई जब मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि अब एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। IIT नहीं हो तो क्या दूसरी चीज़ हो सकती है उससे, समझ में आप लोग। तो अगर ये बोल सकता है, ठीक है, 13 साल का है, ये बोल सकता है, और इसने बताया कि केवल प्रैक्टिस करता था, जाके यहाँ से सीखता था, घर में प्रैक्टिस करता था। आप क्या करते हो, घर में जाते हो, कॉपी ये गई और आप उधर गए, बस हो गया। नहीं हो सकता ऐसे ना, इसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रैक्टिस क्या करनी है, वही चीज़ों को रिपीट करना है। उससे क्या है, आप रट्टा नहीं मार रहे हो, उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। डांस करते हो, देख के करते हो ना स्टार्टिंग में, स्टेप सीखने के लिए, फिर बाद में स्टेप जब आ जाती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर लेते हो, चल जाता ना काम। स्टार्टिंग में तो देख के करते हो ना, फिर बाद में आपका एक अपना स्टेज बनता है, एम्पायर बनता है खुद का, मतलब जैसे अब ये खुद का बन चुका है, मतलब इनका एम्पायर। अब इनको मतलब मैं नहीं, अभी अपने आप बन जाएंगे ये। आपको खुद का एम्पायर बनाने के लिए पहले सपोर्ट लेना होता है, और सपोर्ट क्या, जो आपको यहाँ सिखाया जाता है उसको रिपीट करना है, बोलना है कई बार जाके। और मैंने आपको बता दिया, एक बार आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया तो लाइफ में एंड जब आप सांस ले रहे हो ना, अंतिम सांस ले रहे हुए, तब तक आपके काम आएगी इंग्लिश, ठीक है। हाँ, वैसे आप वहाँ के ग्रैंड एंड डॉटर होंगी, मतलब ग्रैंड सन होंगे, मतलब ओ माय ग्रैंड सन प्लीज कम, आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज कम एंड सिट विद मी, आई एम फीलिंग थर्स्टी, प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। हो गया, ओके ओके ग्रैंडफादर प्लीज वेट वेट वेट, आई एम आखिरी सांस तक आपके साथ रहने वाली चीज़ है ये मतलब आप जो यहाँ पे फीस जमा करते हैं उसकी वैल्यू, मतलब फीस और जो पढ़ाई होती है उसका वजन बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पे नॉलेज दी जाती है, पढ़ाई कभी मतलब पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। पढ़ाई की वैल्यू हमेशा बहुत ऊपर तक है, बहुत ज़्यादा। फीस इसलिए दी जाती है क्योंकि वो स्टार्टिंग से चला आ रहा है कि गुरु की गुरु दक्षिणा, मतलब फीस जमा करेंगे तो इससे आपको उस चीज़ को लगेगी, मतलब आपके आप सीरियसली लेंगे उस चीज़ को लेके, तो इसलिए होता है सारी चीज़ें। और पढ़ाई जो की दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू आप दे भी नहीं सकते, और मैं भी नहीं दे सकता अगर मैंने किसी से सीखी है। वो हम अंतिम
क्षण तक, मतलब उसकी वैल्यू आपको रिस्पेक्ट दे के ही मतलब आप दे सकते हैं बस केवल। रिस्पेक्ट इन द सेंस, कोई भी आपको टीचर मिले पुराना आपको, तो उसको रिस्पेक्ट करें, नमस्ते करें, तो याद करेगा आपको, मतलब कि आपने उसको, मतलब उसने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो तो भूल जाएगा इन केस, तो आप उसको इग्नोर ना करें। आप उसको जब जब आप उसको नमस्ते करेंगे या जब जब वो मिलेगा, तो वो आप उस समय आप उसको फीस दे रहे हैं अपनी, ठीक है। तो आज इन्होंने इतना सीख लिया है, और मैं इनको इसलिए बुलाया कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ जितना पढ़ाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है और सोचना है। और आपके सामने कोई भी सीरियल चल रहा है या घर में कोई डिस्कशन चल रहा है, आप फटाफट उसको कन्वर्ट करिए इंग्लिश में। ये डिस्कशन चल रहा है कि तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट, अरे हम छोले भटूरे नहीं खाएंगे, तो आई विल नॉट टेक छोले भटूरे। अरे मेरा मन नहीं कर रहा है, तो आई डोंट लाइक छोले भटूरे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन छोले भटूरे। इस तरीके से, ठीक है। कल तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। कल तो मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। कल तुम कॉलेज मत जाना, तो यू शुड नॉट गो टू कॉलेज। मत जाना तो मतलब सलाह दे रहे हो, यू शुड नॉट गो टू कॉलेज। कल मुझे कुछ काम है, कल मेरे साथ ऑफिस, कल मेरे साथ मार्केट चलना, तो टुमारो आई हैव सम वर्क, टुमारो गो विद मी इन द मार्केट। इस तरीके से मतलब डिस्कशन कोई कर रहा है, आपस में कोई कर रहा है, आप माइंड में बैठ के ना उसको फटाफट फटाफट कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। और जहाँ फंस रहे हो कि इसको कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे, वो मुझसे पूछे सर इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। और वो चीज़ पूछनी है वो क्लास से पहले या क्लास के बाद, यानी बीच क्लास में कोई मैं टॉपिक चला रहा हूँ, जा बताओ सर जाए कहाँ बोली है, इससे मालूम पड़ा बाकी बच्चों को भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है, समझ गए। प्लीज़ क्लैप कर दीजिए इसके लिए, प्लीज़ क्लैप।